Any questions from what we discussed yesterday? Last time, any questions? So we've discussed liquidity ratios yesterday. Am I audible? Hello. Yes, you are. Okay, thanks. So in case no questions, I'll start with solvency ratios. Solvency ratio, from a concept perspective, it's similar to the liquidity ratio. The main difference is the liquidity ratio is primarily on focusing on the short-term liquidity, short-term credibility to make your short-term payments, to take care of your short-term dues. Whereas the solvency ratios is more from a long-term perspective. So it helps you to assess your long-term credibility in the market. So first solvency you start with is debt equity ratio. Okay. And yeah, debt equity ratio and the formalized debt upon equity. So it's a very interesting ratio. So yeah. So it's a debt equity ratio.
Hello, am I audible? Hello. Yes, sir. Yes, sir. You are audible. So, yeah, so when we say debt equity ratio, in the numerator, which is debt, we're looking at the long-term debt. Your short-term dues or short-term creditors are not included in the numerator. Now, we look at debt. When you raise debt, you means company, you pay interest, and hence you save tax. जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, सो इंटरेस्ट पे करने से आपका टैक्स पेमेंट कम हो जाता है. ये क्वेश्चन क्लियर है? मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एनीबॉडी हैज एनी डाउट इन दिस कि इंटरेस्ट पेमेंट से आपका टैक्स सेव होता है? ठीक है, आई टेक दैट एज कि किसी को डाउट नहीं है इसमें. But at the same time, so which typically means आपको ज्यादा टैक्स सेव करने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट पे करना चाहिए, ज्यादा इंटरेस्ट पे करने के लिए ज्यादा डेट लेना चाहिए. So this is one side of the story, that you should take more debt to save more tax. The other side of the story is when you raise debt, this creates fixed obligation. The fixed obligation is two fixed obligation, एक तो principal repayment plus interest payments. ये तो fixed obligation आ जाती है, and this fixed obligation creates bankruptcy risk. So when you increase the debt, it increases your obligation, and at the result, your bankruptcy risk goes up. So you have one advantage, and on the other hand, you have a risk. And that's why the debt is called as double-edged sword. क्योंकि दोनों साइड से वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है. अगर आप डेट नहीं लोगे तो आप टैक्स पे करोगे ज्यादा, अगर आप ज्यादा डेट लोगे तो आप बैंक्रप्सी रिस्क क्रिएट करोगे. And hence you need to manage this between this so that you do not go on the either of the extremes. Any questions till this point? And now come back to this debt and equity ratio. अगर कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो ऐसे 0/1 है, 1/1 है, 2/1 है, A, B, C. हाँ जी. As a management, which situation or which scenario would you prefer? And why? Third, sir. Sir, third situation. Third, 2/1. Yes.
सी। क्यों? My opinion. सर क्योंकि डेट हाई होना चाहिए हमारी इक्विटी से। Which is B. एक मिनट, फजल सी क्यों है? सर क्योंकि हमारा जो ये डेट ज्यादा होना चाहिए इक्विटी से। क्यों? क्योंकि सर जितना ज्यादा डेट होगा उतना ज्यादा सर इसमें रिस्क का क्योंकि रिस्क कम इसमें बेयर करना पड़ेगा। बस आपका आवाज नहीं आ रहा है। I'm saying sir, there is some risk bear. आई कांट हियर यू। सुभाष आप अपना माइक वगैरह चेक करो, आपका ये सर माइक क्लियर नहीं है। मैंने कई बार चेक करवा लिया सर, मैं क्या करूँ, नया माइक लेना पड़ेगा। ठीक है, आई लीव इट टू यू, बट आई कांट हियर यू वेरी क्लियरली। हाँ दीपक, आप बोलो क्या बोल रहे थे? It's B, because the capital structure is equally weighted between equity and debt. बी फॉर बॉम्बे। Yes, B. क्या रीजन है? Its capital structure is equally weighted between debt and equity. So what? So equally weighted है तो अच्छा हो गया। ऐसा कहाँ लिखा है और किसने बोला? But you cannot give a more weightage on. It has to be because if you are going more towards debt, then again that you already told the bankruptcy will be there, and if you are relying on more on equity. So उससे 1:1 का कंक्लूजन कैसे निकाल दिया आपने? Yeah, out of these three. हाँ तो आउट ऑफ दिस से तो 2/1 भी बनता है। नहीं, it's more leveraged ना as compared to A and B. तो उस लॉजिक से फिर ए पे रहना चाहिए। जो आप बी का लॉजिक बता रहे हो, एक सेकंड, आप बी का लॉजिक बता रहे हो वहां पे इक्वल है, which means the if you're taking a 2 rupee total capital, उसमें से 1 rupee is debt and 1 rupee is equity. So you're saying the ideal debt equity ratio is 1:1 because वहां पे दोनों का weights equal होता है। वो लॉजिक मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। वो तो आप रूल बता रहे हो, it's not a logic. You're telling me कि ideal ratio is 1:1, क्यों? वो पीस नहीं बताया। सोचो थोड़ा सा। हाँ कृतिका, go ahead. It's Parul. Go ahead. I think, in my opinion, we cannot decide among these three. I think it depends upon the life cycle of the company. Like when it's a new company, you cannot go for equity. So you have to go for debt. So later on, when the company grows, it becomes more stable. So at that stage, it will go for equity. So जब नई कंपनी होगी, नई कंपनी में we should not go for debt or we should go for debt, क्या बोला आपने? We should. We should. तो यानी अगर नई कंपनी है तो एक डी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, डी में होगा 2/0, ऐसा? नहीं, and also it depends upon the industry. मतलब in my opinion, we cannot decide what would be the fixed or ideal debt equity ratio, because it depends upon company to company, and it's like the demand. अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन दिया है और आप ऐसा आंसर करोगे ना तो आपको वैसे बाहर कर ये जो आंसर आप देख रहे हो ना, ये आंसर हर रेशियो में फिट हो सकता है। We can't give an answer basis this. नहीं, स्पेसिफिकली फॉर डेट आप इनमें से चूज करो एंड
support your choice or support your selection with whatever logic and assumption that you want to make. But आपको choose तो करना पड़ेगा, otherwise this answer will not help you in an interview. Agree with you. You might add some assumptions to this. For example, ABC assumption करके ये B या C या D या A is what I support, what I would choose as a management. जैसे कि आप बोल रहे हो अगर इंडस्ट्री मैटर करती है, आप बोल रहे हो कुछ तो आपने लाइफ साइकिल के बारे में कुछ तो बोला, आई डिडंट अंडरस्टैंड टू मच, बट जो भी आपने बोला उन सब चीजों को आप एज्यूम करो कि लेट्स अज्यूम इंडस्ट्री एक्स है और ये वाई है और ये एक्स और वाई के एजम्पशन पे ये सिचुएशन है बिकॉज ऑफ एबीसी. ऐसा बोलोगे तो it will make an impact कि हाँ you understand what it means, you have an ability to give a perspective of some assumptions or industry. So considering everything else is constant, I'll go for B. वो आपका चॉइस है, आपको कंसीडरिंग एवरीथिंग कांस्टेंट करके आंसर देना है या किसी बाकी चीजों को एजम्पशन करके आंसर देना है, वो आपको चॉइस है. Which is more cheaper, equity or debt? आप बताओ. तुम्हारी क्या अंडरस्टैंडिंग है दीपक? Which is more cheaper? It should be debt. Debt. Yes. क्यों debt? You have told us way back. I'm not able to recall that. Yes. ठीक है, ठीक है. And when you are telling in a very earlier classes that when you started with the capital, what is capital and all that. ठीक है. Not able to recall. Cheaper है. अगर debt cheaper है, so what? Does that changes your answer? You have opted for, I think B opt किया था आपने. No, it's still it is B. Because if debt on that concept, if debt is cheaper, then you cannot go for this 100% equity. What the option A is and C is more leveraged. Debt cheaper है तो फिर B ऑप्शन वैसे भी रूल्ड आउट हो जाता है दीपक. कौन सा? ध्यान से देखो, अगर डेट चीपर है तो ज्यादा डेट रेज करना चाहिए. नहीं तो फिर व्हाट सी और डी आपकी मींस फिक्स्ड लायबिलिटी मोर लिवरेज्ड हो जाओगे ना आप. तो चीपर कैसे हुआ? I said correct. This is a very interesting ratio. A lot of people will find it very, very difficult to explain this. Then we should go with if that is the case, then we should not go for equity. D हो जाना चाहिए ना फिर. नहीं, D तो it's an infinite ratio. अरे mathematically ratio को छोड़ बता. What I'm saying कि your capital structure basically. The most or everything what you can get is should be from debt. So what I'm trying to tell you in situation D is कि equity zero है, debt 100% debt है. So calculation में वो infinite आएगा, वो छोड़ देते हैं अभी के लिए. We're just trying to understand कितना debt कितना है. सोचिए. But इसमें in any of the case you have 2/1 में you have to pay anyhow. आपका company कुछ भी कर रहा है, whether it's making profit or not, you have to pay that amount to your financial creditors. Correct. वो तो debt A, B, C, D सब में करना पड़ेगा आपको. वो तो debt की definition ही है. नहीं A means as compared to C, it is less in case of B. In case of A, it is zero only. Sorry. Yeah. ठीक है फिर. When fixed obligation will increase,
whether you are doing good on the business going concern है कि नहीं, it's all you have to pay. ठीक है. Otherwise you will be in sort of insolvency and all that. So then what's your final take now? B. Still B. But I'm that particular question you are asking, why that is equity is cheaper. Can you please, because I'm not able to recall that. Equity cheaper नहीं है, so debt cheaper है वो. Oh, debt cheaper है, sorry. तो अगर वो भी पॉइंट में ले लूं तो why ये सपोर्ट कैसे कर रहा है y को? You're opting for B, and the answer why B, are you trying to say y का आंसर ये because debt is cheaper? Is that your response? If I can gather that what is exactly the thought, we can derive further. ठीक है, सोच लीजिए. हाँ जी, बाकी लोग. Aditya has written in the chat. क्या लिखा उसने? D. C. C. Sorry, C or D? I'm going D. with the C. एक सेकंड. आदित्य, you opted for C or D? C, sir. C for Calcutta. And why C? Because the ideal optimum ratio according to NUS is 2.0. Like the debt to equity points like 2:1. If we make $1, because since debt is a cheap accommodation method of paying back, so we can rely on. आप मेरा फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हो रेशियो का? Yes, sir. I was ill for the past 3 Sorry? weeks. Yes, sir. I had COVID for the last 3 weeks. Okay, and this is your first class with me? Yes, sir. Okay, and you're part of this batch? Yes, sir. ठीक. जब आपने आंसर दिया ना उसी से मुझे पता लगा ये फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हो, because otherwise you would not have given this answer. ठीक है, we'll come to this. हाँ जी, तो सुभाष कुछ आप बोल रहे थे. I'm saying I'm going with the C. अरे यार तुम्हारा सुना ही नहीं देता. You're going with I'm going with the C. C. हाँ, क्यों? C. Because here is a risk is some below the risk of the debt. Company number C. No, I didn't understand what you meant. सर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो रिस्क है, रिस्क इन द फैक्टर ऑफ द कंपनी प्रोस्पेक्टिव, यह रिस्क कम है कंपनी नंबर C. कैसे कम है? कैसे कम है? क्योंकि 2:1 पे यहाँ पे है सर. तो रिस्क कम कैसे है? सर डेट तो हाई है ना, इक्विटी तो कम है. तो यहाँ तो डेट तो जैसे 2 डिवाइड बाय 1 है, तो डेट हो गया. तो भी तो बोल रहे हो सर, डेट अगर एक्सेस है और इक्विटी कम है तो रिस्क तो कम होगा ना सर. अरे क्यों पूछ रहा हूँ सुभाष? आई एम आस्किंग यू व्हाई यू आर अगेन रिपीटिंग द सेम लाइन. कम है तो रिस्क क्यों कम है वो बताओ ना. सर रिस्क कम नहीं होगा, यहाँ पर रिस्क ज्यादा ही होगा. बंदो रुक जा. हाँ सुभाष, आई एम आस्किंग यू व्हाई यू आर रिपीटिंग द सेम लाइन अगेन एंड अगेन. इफ यू नो व्हाई गिव मी द आंसर. इफ यू डोंट नो द लॉजिक टेल मी. सर पता नहीं क्यों. नहीं हो. हाँ बस बोलो. सर सी इज गुड बिकॉज यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा. C is good. हाँ. You also opted for C. यस सर, फ्रॉम स्टार्टिंग से मैं सी पर ही हूँ. क्यों C चूज किया था तुमने? क्यों सर? डेट जो हमेशा इक्विटी से ज्यादा होना चाहिए और क्यों? इससे जो है ना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा इससे. अच्छा, तो उस लॉजिक से तो ये 10/1 कर लो. ये नहीं वाला सर, चीज़ तो डेट इक्विटी में डेट ऑलवेज 2 और 3, डेट हमेशा 2 और 3 के रेशियो में होना चाहिए. क्यों?
इससे ज्यादा होने पर ये इंसॉल्वेंट हो सकता है। अच्छा 2 पर सॉल्वेंट नहीं हो सकता। नहीं। या फजलू तुम, आदित्य ने ये वाली बात बोली, मुझे समझ आता है क्योंकि उसकी फर्स्ट क्लास है। तुम भी अगर ये बातें कर रहे हो ना कि बुक में लिखा हुआ 2:1 होना चाहिए, 3:1 होना चाहिए, इसलिए एक्सेप्ट कर लो, तुम्हें पता है आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस नॉनसेंस। ठीक है, यू आर अटेंडिंग ऑल क्लासेस, फिर भी आप यही वाली बात कर रहे हो सर 2/1 होना चाहिए, 3/1 होना चाहिए। अरे रीजन बताओ ना मुझे, रीजन आप बोल रहे हो कि 2/1 बुक में लिखा हुआ है, 3/1 बुक में लिखा हुआ है, इसलिए उसके आगे नहीं जा सकते, 4/1 क्यों नहीं होना चाहिए भाई? कम ऑन, मुझे रीजन बताओ। मुझे ये मत बोलो कि बुक में लिखा हुआ होता है, आइडियल ये होती है। आई डोंट एक्सेप्ट दैट नॉनसेंस। आई नीड रीजन, द लॉजिक। Why 2, why 10, why 3, why whatever number you choose. पता है फजलूर why 2/1 is good या नहीं पता है? सर ठीक है, सोच लो। हाँ जी, इसे anybody else? बोलो बोलो। कंपनी जो है ये डिवेंचर होल्डर्स को एक फेवरेबल इंटरेस्ट ही दे पाएगा ना सर। इससे ज्यादा होगा तो इंसॉल्वेंसी पर हो सकता है ना। नहीं, दोबारा रिपीट करो, नहीं समझ हेलो। आया। हाँ, रिपीट करो। मैं ये कह रहा हूँ ये कंपनी जो है डिवेंचर होल्डर को एक फेवरेबल इंटरेस्ट ही दे पाएगा ना। अगर 2 से ज्यादा हुआ या उससे ज्यादा 3 से ज्यादा हुआ तो एक इंसॉल्वेंसी का चांसेस बढ़ जाता है। क्यों? लास्ट बार पूछ रहा हूँ, वाई? आप वाई आंसर नहीं कर रहे हो ना। अब उसको रिपीट करो जो सुभाष गलती कर रहा था, एक लाइन को रिपीट कर रहे हो, ये होता है ये होता है, सुन लिया मैंने, अब उसका वाई बताओ मुझे। अगर कंपनी 3 से ऊपर चली जाएगी या 2 से ऊपर चली जाएगी तो सॉल्वेंसी रिस्क क्यों हो जाएगा? इसका आंसर नहीं पता सर। हम्म चलिए, anybody else, any other thought on this? I have reconsidered. I don't know I'm कोई right or बात नहीं, wrong, but I go for you A. don't need to, guys, I'll you go for don't need to worry about right and wrong, and that's why I'm trying to tell you कि जब आप बोल देते हैं, you share your thought, it gives you perspective कि आपकी understanding अभी तक क्या है, so you do not need to hesitate and think whether you're right and wrong. The initial part of the discussion is only to do a brainstorm and then bring all thoughts on the table, not to decide who is right and who is wrong. So Parul, don't worry, don't hesitate, go ahead. I'll go for A. Okay, why? Because management, as a management, I don't want to pay the fixed cost of interest, Hmm. and I'll go for, instead of like variable cost of paying the dividend, and like Variable for cost, equity, I don't which think is it's a variable. fixed cost. So it, the dividend. Okay, okay, yeah. So Go ahead, I complete. compare to debt and equity, I'll go for equity because I think the cost of capital would be high, but it would be the one-time cost. But for debt, it would be the constant fixed cost, fixed obligation. Okay. So your entire reason is based on this point, correct? You do not want to create any obligation, but at the same time you will get a hit of this tax का hit लगेगा ना आपको? Pablo, you with me? Yes, yes. चलिए, हाँ जी, any other thought? जो लोग अपने थॉट शेयर नहीं कर रहे, अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर नहीं कर रहे, दे आर इन अ बिगर मेस.
ठीक है, I don't want to run this like a school कि मैं जाके individually pinpoint करूँ. I think you guys are mature enough. When I'm saying share your thought, you should own this up and unmute yourself and share whatever is your thought without hesitating what is right and what is wrong. If you don't do that, I leave it to you. But if you don't do and you get in the practice of not voicing out your thought, okay, it will create a dent in your into long-term learning process. Rest I leave it to you. Do you have anybody else who wants to share any thought on that? Sir, my option is A. क्यों? Because of no, sir, out of debt, there is zero debt out of my equity. So ये अच्छा क्यों है? सर कोई डेप्ट नहीं होगा तो इक्विटी से प्लस ही होगा ना सर, वो मुझे बेनिफिट मिलेगा तो हम इसको प्रेफर करेंगे. क्यों? Why आंसर करो संजीव. Why? Sir, can't define, sir. ठीक है. चलिए. Now let me change the color. Yeah. हाँ जी. So जो कॉस्ट की बात हो रही थी, जो कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ठीक है, जो चीपर पॉइंट बोल रहा था वो चीज डोंट रिमेम्बर, व्हिच मींस डेट इज चीपर देन इक्विटी. ठीक है, अगर किसी को इसकी जरूरत है तो ये तो मैंने पुराना जो थॉट है डिस्कशन किया हुआ वो जस्ट समराइज कर दिया. नाउ हाँ जी, सो डेट इक्विटी है. ठीक है, आई विल स्टार्ट विद जो रूल आप लोगों ने पढ़ा है सालों से, आइडियल डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए. ठीक है, वो स्क्रैप है. ठीक है, दैट्स नॉट द केस. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कैसे इसको असेस किया जाता है. ब्रॉडली 3 वेरिएबल्स होते हैं. 1, 2 फिक्स्ड ऑब्लिगेशन एंड 3. आप एज अ मैनेजमेंट चूज करते हो आपको 1, 2, 3 में से किसको प्रेफरेंस देनी है. एंड 1 और 3 एक साथ आते हैं, एक साइड में खड़े रहते हैं, और 2 अपोजिट साइड में खड़ा रहता है. Till this point, अगर आप डेट रेज करोगे, if you raise debt, you will save on tax, you will get a cheaper source of funds. So that is the advantage on one side. On the other side, you will create a fixed obligation, which means you create a bankruptcy risk for you. Is this clear? Any question to this point? 1 to 3. Now, as a management, you decide what are your priorities at a given point of time. To Parul, I think life cycle की बात करी. I don't know why she deviated from that and why she left that. Okay. But what I understood, what she should have said it, जो उसको explain कर रही थी आगे वो, but I don't know why she left it. कि for example एक startup company है. Okay. Now in the initial phase of your startup business, you
can't afford to create a fixed obligation. So for you at an initial stage of the business, point 2 becomes very important priority. Because अभी आपके पास revenues आने शुरू नहीं हुए हैं, अभी आपका product launch नहीं हुआ है. तो जब revenues नहीं आ रहे, product launch नहीं हुआ, you are still at the development stage or introduction phase, you can't afford to create a fixed obligation in form of EMI because अभी भी आपको 6-7 1 महीना 1 साल लग सकता है अपने प्रोडक्ट को सोल्ड आउट करने में मार्केट में और रेवेन्यूज आने में, तो आप EMI पे नहीं कर पाओ. Hence at the initial stage of your business you do not want to create any fixed obligation. Hence your preference is point 2 over and above 1 and 3. Any doubt at this point? Have you understood this concept? Parul? हाँ जी. वो छोड़ना नहीं चाहिए था आपको, आपने सही ट्रैक स्टार्ट किया था. और जो मैंने आपको बोला था कि assumptions क्रिएट करो, इसी assumptions की मैं बात कर रहा था. You should have said कि स्टार्टअप है या नॉन स्टार्टअप है, लाइफ साइकिल, इसी को लाइफ साइकिल बोल रहे थे ना, करेक्ट? आप इनिशियल स्टेज पे, ग्रोथ स्टेज पे है. Yeah. So that is what I was trying to push you कि make that assumption and then give your answer so that it becomes a comprehensive answer rather than giving the impression you want to do escape from the question. तो हाँ, थोड़ा वीक हो गया लेटर. Got it. But school में not था. we are going with the trend analysis कि trend ऐसा है, matured company, immature company है, startup है. So things would have been different. Things would have been different for each. Yes. मैं कोई ट्रेंड से नहीं जा रहा हूँ. मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं मैनेजमेंट हूँ, ठीक है, E, B, C, D में से मैं कौन सा चूज करूंगा, मैं वो मैनेजमेंट का थॉट बता रहा हूँ, कैसे मैनेजमेंट सोचता है और कैसे सोचना चाहिए उसको. So if I'm a management of a startup company or of even if a running company, which is an old company, but I do not have stable cash flows, I do not have stable sales, मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मैंने 3 वेरिएबल ड्रॉ करे हैं जो ब्लू में लिखे हैं, 1, 2 and 3. एज ए मैनेजमेंट मुझे इन 3 वेरिएबल्स में से चूज करना होता है कि कौन सी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है. And for a startup company, who will give them equity capital? आते हैं उस पे. मैं इन्वेस्टर साइड से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ दीपक ये अभी. And that's why I told you it's a very interesting ratio because ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा. मैनेजमेंट क्या चाहता है, इन्वेस्टर. इसलिए स्टार्टअप is a big complicated game, especially in the private equity and venture capital game. I don't know आपके बैच के लिए हमने क्या मॉडल चूज किया. I think अभी तक वो डिस्कशन ही शायद नहीं हुआ. So some of the batches have got an opportunity to do startup modeling with me, so they've got an exposure to that side as well. But ठीक है, वो छोड़ देते हैं कि आपका बैच क्या करेगा. But yes, जो आप बोल रहे हो कि स्टार्टअप को इक्विटी कौन देगा, वो एक सेपरेट क्वेश्चन है विच इज फ्रॉम एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव. बट अगर मैं एक मैनेजमेंट का पार्ट हूँ स्टार्टअप का, तो मेरी प्रेफरेंस, आप बताओ, अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट करते हैं जो प्रोडक्ट अभी आइडिया या डेवलपमेंट स्टेज पे है और उसको रोल्ड आउट करने में 6 से 8 महीने लगने वाले हैं, सेल होने में आपको लग रहा है ब्रॉडली 1 से 1.5 साल का टाइम लग जाएगा, तो यू एज अ मैनेजमेंट वुड वांट टू रेज डेट और वांट टू रेज इक्विटी? Surely you will want to raise equity because it means your preference would be towards your preference would be towards the option A, correct? Scenario A. Yes. Because you've opted, or your preference is to work more towards point number 3 rather than 1 and 2, correct? Yes. That's the only thing that I've explained till now before I move further. किसी को कोई डाउट, क्वेरी, कुछ पूछना हो तो पूछिए. दीपक आपको कुछ इसमें पूछना हो तो बोलिए. No, that's you at least said that it's all depends upon the life cycle of the company, in which cycle it's in premature, mature, or advanced stage. So it does not only depend on the life cycle. That's what I'm trying to explain to you. But अभी डिस्कशन मैंने लाइफ साइकिल से स्टार्ट करी है because पारुल ने लाइफ साइकिल का पॉइंट किया, बट इट विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड जैसे हम आगे जाएंगे. ठीक है. Now so which means
this theory of ideal ratio debt is to 1 falls flat. Most of the startup private equity funding happens at a very, very low debt equity ratio. ठीक है, एंड उसका रीजन ये है क्योंकि एज अ मैनेजमेंट यू डू नॉट वांट टू क्रिएट डेट इन द इनिशियल स्ट्रक्चर. जितनी भी एप्स लॉन्च होती हैं, ठीक है, आप कोई भी ई कॉमर्स ऐप सेगमेंट उठा के देख लो, ये सब इक्विटी फंडिंग के थ्रू क्रिएट करी जाती है क्योंकि उस ऐप को बनने में, उस ऐप को लॉन्च होने में, उसके उसके एक डिसेंट नंबर के डाउनलोड्स आने में और फिर उससे रेवेन्यू जनरेट करने में, it's generally what we've seen for a decent segment is a period of 3 to 4 years के स्पैन लेके जनरली हम लोग चलते हैं when we work into this segments. यहाँ पे जनरली डेट आप प्रेफरेंस नहीं करते बिकॉज वो 3 से 4 साल के लिए आप डेट अफोर्ड नहीं कर पाओगे, एंड क्योंकि उसमें फंडिंग, क्योंकि उसमें कुछ इन्फ्लो नहीं आएगा, कैश इन्फ्लो नहीं होता, सिर्फ इन्वेस्टमेंट चलता रहता है. Means you want to check it from 3 to 4 years. Not, it's not checking, it's कि उस बिजनेस से पैसा जनरेट होने में 3 से 4 साल लग जाते हैं. Okay. ये सर डेप्ट में, हेलो हाँ सुभाष, हम से क्या डेप्ट में ये ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव कि 3 से 4 साल खाली पहले इन्वेस्टमेंट करते जाओ, देन उसके बाद फिर एक्सपेक्ट करो गेन होने का या रिकवरी होने का, प्रॉफिटेबल. हम डेट थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, मैं जो डेट मना कर रहा हूँ कि ऐसे सिचुएशन में डेट नहीं लूंगा. तो इक्विटी, हाँ इक्विटी लूंगा ना ऐसे सिचुएशन में, बिकॉज इक्विटी मेरी कोई फिक्स ऑब्लिगेशन नहीं है पेमेंट करने की. कब करूंगा वो भी ऑब्लिगेशन नहीं है, कितनी करूंगा वो भी ऑब्लिगेशन नहीं, जब मेरा मन होगा, जब पैसा होगा तब करूंगा. सर इक्विटी का एक और एग्जांपल आप दे सकते हैं क्या? चलिए, क्या बोला आपने? He's saying that one more example for equity, I think. One more example for equity. मैंने तो इक्विटी का एक भी एग्जांपल नहीं दिया. आई डोंट अंडरस्टैंड क्वेश्चन क्या है. मैंने जो अभी एक सिनेरियो दिया है कि अगर मैं स्टार्टअप कंपनी हूँ तो between 1, 2 and 3 my preference is to work more towards point number 3. Sorry. So my preference is work towards point number 2, not 3. और मैं अपने लिए एक फिक्स ऑब्लिगेशन क्रिएट करना प्रेफर नहीं करूंगा बिकॉज इफ आई क्रिएट दैट फिक्स ऑब्लिगेशन I would have struggled because the revenues are yet to come. It will take some time for me to generate revenues. Hence, I would avoid getting into the fixed obligation. Any doubt till this point before I move further? Okay. Now, look at from the market perspective. If I'm a startup company and I come to you for funds, would you give me debt or would you give me equity? Debt. Debt. So you're opting for debt. क्यों दीपक? At least whatever we have given, they will pay back their financial obligation for that. Anybody else any thought on this? Please repeat the question. If I have my startup business, I launch a new business, new idea, and I come to you, and you are one of the people who can invest money. So Parul, मैंने आपसे कहा मेरे business में invest कर दो, तो would you invest in capacity of debt, or would you give me funding in form of equity? Which mode would you choose, debt or equity, to invest? अब मैं investor के perspective से पूछ रहा हूँ.
Depending upon the idea, I would rather go for equity, like in profit sharing. Depending upon idea. So let me give you an idea. So let's assume the idea is we'll launch some app which will do some e-commerce business, something like that. So Myntra समझ लो चलो, it's very similar to a Myntra app. आप बताओ. Debt or equity? Carl? Means I would consider various aspects, like if you know the idea, if you understand the idea, if you are convinced with the management, the people who approached you. So I would आप rather पूछो go for मुझसे, equity. मैं कंपनी हूँ जो आइडिया लेके आया, आई एम द प्रमोटर, यू आर द इन्वेस्टर. इफ यू नीड एनी Yes. इंफॉर्मेशन आस्क फ्रॉम मी एंड एट द एंड गिव मी एन आंसर. डोंट डू द सेम मिस्टेक अगेन जो आपने पहले करी. If you need any information, मैंने आपको आइडिया बता दिया. आइडिया इज आई वांट टू लॉन्च an app which will do very similar business of Myntra. Myntra आपको पता ही होगा, ठीक है. अगर नहीं पता है Myntra, मैं दूसरा कोई एग्जांपल लेता हूँ जो आपको पता हो. No, I know. ठीक है. और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे पूछो, मैं देने के लिए रेडी. बट एट द एंड द आंसर शुड कम आउट along with the reason. You want to assume anything, you can add that assumption in your answer. Assuming A, B, C, this is my answer. Whichever way, I'm okay with either, but the answer should come out. Like in e-commerce, there is already too much of competition, so I would like to know the proof and the difference you are going for launching the app. What approach like different from the other apps? So I would, The approach as would an be, investor, I would like to know. मैं आंसर करता हूँ. So first, my approach would be कि जो प्रोडक्ट्स मिंत्रा पे अवेलेबल हैं, ठीक है, आप ऑर्डर करते हो तो आपको 2 दिन 3 दिन में डिलीवर होते हैं, ठीक है. So our concept would be if you order before 11 a.m. it will be delivered to you on the same day. That's the USP that we will bring in. अभी कोई ऐप मार्केट में ये नहीं करती, स्पेशली इनटू दैट सेगमेंट. और बोलो, और क्या चाहिए आपको? Or what is the मतलब relation, like they know each other, the They means investor who? and the They means who? आप इन्वेस्टर हो, और they means who? इन्वेस्टर आप हो, investor प्रमोटर में. and the promoter. No, we have not interacted in the past. This is the first time I'm making a presentation about my idea. Okay, I can go for that. क्यों? Because initially that, like, it's just a startup, so you cannot completely have faith that it would give you return or not. उस लॉजिक से तो आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए फिर. चलो छोड़ो, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है. सो जैसे दीपक ने डेट बोला, पारुल आपने डेट बोला, and in those who are opting for debt, now think carefully. When you invest in form of debt, your return is limited or unlimited? Limited. Okay. Now, this is important now. Your risk is limited or unlimited? Unlimited.
दीपक risk is limited. पारुल ने अनलिमिटेड बोला, आपने लिमिटेड बोला. एक मिनट, डेट में Because 100 रुपए दिया आपने, 100 रुपए अगर नहीं देगा तो that's to the extent of 100 rupees you will. उस लॉजिक से इक्विटी में रिस्क अनलिमिटेड है, लिमिटेड है? Debt is दैट इज आल्सो लिमिटेड ना विद दिस लॉजिक जो आपने लॉजिक बनाया. क्योंकि इक्विटी में मैंने अगर 100 रुपए दिया तो 100 रुपए ही तो गायब हो सकता है, मेरा घर पे तो ना आ सकता है. so economic. सॉरी गाइस, ये मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, बट ये कॉम्प्लिकेटेड है. बट इक्विटी में रिस्क अनलिमिटेड है बिकॉज उसमें रिटर्न का हमारा कोई गारंटी, मतलब वी डोंट हैव एनी प्रूफ कि रिटर्न वुड बी. इक्विटी में रिस्क लिमिटेड है अनलिमिटेड? यू सेड व्हाट? अनलिमिटेड है. अच्छा ठीक है, रुको मैं एक बार दीपक से वो क्लियर करने दो. हाँ दीपक, सो यू सेड डेट में लिमिटेड है. द लॉजिक दैट यू गिव इज क्योंकि 100 रुपए लगा सकता हूँ, वही मेरा मैक्सिमम लॉस है. नहीं, उसमें they don't have the financial obligation to pay it you back in case of equity, but in case of debt they have the legal obligation to pay you back. So what? So you are less risky because मैं लेस और मोर नहीं डिस्कस कर रहा हूँ. unlimited मेरा क्वेश्चन ये नहीं था. unlimited in equity. मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि इक्विटी और डेट में किसमें ज्यादा रिस्क है. मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं एक स्टार्टअप कंपनी के आइडिया में इन्वेस्ट करता हूँ इन फॉर्म ऑफ डेट, तो मेरा रिस्क लिमिटेड होता है कि अनलिमिटेड होता है, एंड व्हाई? अगर आप लिमिटेड चूज करते हैं तो वाई लिमिटेड, आप अनलिमिटेड चूज करते हैं तो वाई अनलिमिटेड. ये क्वेश्चन है. That's what I've answered, that in case of debt it is limited to the extent of what you have given, and they have the financial obligation to pay you back. So and if yes, without considering this as a startup, that you should not invest, considering you have to invest 100 rupees. Now going to invest 100 rupees, I'll prefer debt because at least they have a legal obligation on that. So in case of debt, it is less risky as compared to equity, and the risk is limited in case of debt. That's my thought. Okay. आप unlimited बोल रहे थे, आप I'd like to add, yes, unlimited for equity because there is no time frame defined when you go for equity. नहीं, इक्विटी बाद में आता है, डेट पे रहते हैं. सो डेट में आपका लिमिटेड है अनलिमिटेड है, आपका थॉट? स्टेवन, डेट लिमिटेड है. अच्छा ठीक है. अब थोड़ा प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से सोचते हैं. मैं जब एक स्टार्टअप के आइडिया में इन्वेस्ट करता हूं, ठीक है, मैं क्या रिस्क रन कर रहा हूं? ध्यान से सोचो. चाहे मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करूं, चाहे मैं डेट में इन्वेस्ट करूं, व्हाट इज द रिस्क दैट आई एम रनिंग इन? द रिस्क दैट आई एम रनिंग इन इज, विल दिस आइडिया वर्क और नॉट? यस और नो? True. Deepak, you with me till this point? I didn't get you. When I invest in a new startup, be it debt, be it equity, am I taking a risk whether this idea will work or not? Yes, risk definition will be different in either the case. One is the from risk perspective, it's if you are going for debt, it's a credit risk and all. The second one is मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि क्रेडिट रिस्क में भी नहीं किया हूँ. मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास एक स्टार्टअप आइडिया है, मैं आपके कंपनी में चाहे इक्विटी में पैसा लगाऊं, चाहे डेट के थ्रू पैसा लगाऊं,
am I exposed to the risk, and the risk is कि will this idea Yes. work or not. Yes. ये रिस्क दोनों को एक्सपोजर है कि सिर्फ इक्विटी वाले को एक्सपोजर? दोनों को एक्सपोजर है। ठीक है, ये दोनों को एक्सपोजर है। ये रिस्क के ऊपर एक और रिस्क आता है जो होता है क्रेडिट रिस्क। व्हाट इज क्रेडिट रिस्क? कि मैंने दीपक को पैसा दिया, दीपक ने अपना स्टार्टअप में लगाया और स्टार्टअप अच्छा चल गया, ठीक है, यानी दीपक के पास पैसा आ गया, फिर भी दीपक मेरा पैसा लेके भाग गया या दीपक ने मेरे पैसे देने से मना कर दिया, ये होता है क्रेडिट रिस्क, which means your intention goes for a toss. So क्रेडिट रिस्क में दो एलिमेंट होते हैं, एक होता है इंटेंशन, एक होता है एबिलिटी। तो एबिलिटी तो पॉजिटिव है क्योंकि पैसा आ गया उसके पास, फिर भी वो मेरे को पैसा देने से मना कर रहा है, वो भी तो क्रेडिट रिस्क है। दूसरा इसकी उसके पास पैसा है ही नहीं, उसकी इंटेंशन तो अच्छे, बस उस बेचारे के पास पैसा ही नहीं है क्योंकि बिजनेस चला ही नहीं, इसलिए पैसा नहीं दे पा रहा। तो मैंने उसको दोनों को ब्रेक कर दिया है बिकॉज ये स्टार्टअप है। यहाँ तक किसी को डाउट क्वेरी तो पूछे। दीपक, ऐसे ही होता है रियल वर्ल्ड में? हाँ, it's ability and intent. करेक्ट। नाउ जैसे किंगफिशर है, किंगफिशर के पास एबिलिटी है बट वो इंटेंट नहीं, इसलिए पैसा नहीं देकर पे कर रहे वो लोग। तो दोनों केसेस होते हैं, ठीक है। जो स्टार्टअप में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, और अगर मैं सपोज दीपक का स्टार्टअप और मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं सोचता हूँ मोस्ट ऑफ द पीपल विल थिंक लाइक दिस, और ये अपने रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है। करेक्ट, यू गाइस माइट थिंक एज एन इंडिविजुअल, इसलिए आप वो रिस्क एपेटाइट में नहीं सोच रहे जो रिस्क एपेटाइट में हम जब इन्वेस्टर से बात करते हैं वो पर्सपेक्टिव दिखते हैं। तो अगर मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ, मैं ऐसे सोचता हूँ कि मैं दीपक के एक स्टार्टअप में पैसा लगाया, मैंने डेट दिया दीपक को, मान लो दीपक को मैंने 1 करोड़ का लोन दिया। तो अगर दीपक का बिजनेस नहीं चला तो मेरा 1 करोड़ डूबने का चांस बहुत ज्यादा है। आई एग्री कि दीपक के ऊपर मैं जाके लीगल कोर्ट में केस कर सकता हूँ, लीगल को दीपक को आई कैन टेक हिम टू द कोर्ट, वो सब कर सकता हूँ, पर मुझे उस लफड़े में नहीं पड़ना है। I don't want to waste my time and going to the court, especially Indian markets में आपको भी पता है कितना डिफिकल्ट है ये सब करना, ठीक है। So it takes hell lot of time and hell lot of money, वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो मेरा थॉट प्रोसेस है कि ठीक है, आई कैन स्टिल टेक दीपक टू द कोर्ट, बट अगर मैंने दीपक को 1 करोड़ का लोन दिया, his idea doesn't work, this money will go for a toss, हाँ या ना? Yes. ठीक है। नाउ बट अगर दीपक का चल गया अच्छा खासा ये आइडिया, तो मैंने दीपक को जो लोन दिया वो 8% पे दिया, लेट्स अज्यूम 8% पे दिया, तो मुझे रिटर्न कितना मिलेगा? सिर्फ 8%। Yes. If you are going for that. हाँ, ये डेट साइड का थॉट प्रोसेस। अब मैं इक्विटी साइड से आता हूँ। अब मैं ही इक्विटी साइड से सोचता हूँ, क्या दीपक को लोन दिया अगर मैंने, तो पहला रिस्क है कि आइडिया नहीं चला, पैसा डूब जाए, ठीक है। ये रिस्क तो डेट में भी था, सेम रिस्क ही है। ओनली डिफरेंस इज कि मैं इक्विटी में आपको कोर्ट में लेके नहीं जा सकता, डेट में आपको कोर्ट में लेके जा सकता, बट मुझे वो कोर्ट वाला फैसिलिटी यूज ही नहीं करना, बिकॉज मेरे हिसाब से वो वेस्ट है इंडिया में, ठीक है। सो दैट टू मी प्रैक्टिकली, मैं थ्योरेटिकली नहीं बोल रहा, थ्योरेटिकली ये दोनों रिस्क सेम नहीं, बट प्रैक्टिकली मेरे असेसमेंट में वो सेम आ गए। अब रिटर्न साइड पर, अगर ये आइडिया चल गया तो इक्विटी में मुझे 8% रिटर्न नहीं मिलेगा, मुझे अनलिमिटेड रिटर्न मिलेगा, हाँ या ना? Yes. किसी को डाउट इस थॉट प्रोसेस में? इसी रीजन की वजह से स्टार्टअप्स में जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो प्राइवेट इक्विटी के थ्रू होते हैं। आपने कोई प्राइवेट डेट सुना है? बहुत रेयर ट्रांजैक्शंस हमने देखी हैं। यही लॉजिक है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो कहता है जब मेरे को रिस्क लेना ही है आपके आइडिया पे, तो मैं रिटर्न भी अनलिमिटेड लूंगा ना, मैं क्यों रिटर्न लिमिटेड लूंगा? तो वो कहता है मैं डेट में नहीं खेलूंगा, मैं इक्विटी में खेलूंगा। एंड हेंस
the funding happens for startups primarily through the private equity, not through the debt capacity. I will pause here, absorb कर लो आप लोग, कुछ पूछना हो, anything that's logically not making sense. सही है, ठीक है। ये बात तो दीपक भी तो कह रहा था वो कि उल्टी कॉस्ट कह ऑफ रहा था, वो रिवर्स कह रहा था। कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होना चाहिए। जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होगा तो रिटर्न भी ज्यादा आएगा ही। अबे दीपक, इन्वेस्टर कॉस्ट ऑफ इक्विटी की तो बात ही नहीं हुई ना यहाँ पे, हम कॉस्ट से बात नहीं कर रहे हैं। रिटर्न Okay. तभी ज्यादा आएगा ना जब We are कॉस्ट। talking on the risk aversion. हाँ, तो रिस्क कम होगा कैसे Risk होगा जब appetite. कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ डेट कम होगा तभी तो रिस्क उसका कम होगा ना। नहीं डेट का मजदूर, ऐसे नहीं होता, जैसे आप बोल रहे हो। दो अलग अलग साइड होती हैं ये। मैं अभी कॉस्ट साइड पे गया ही नहीं हूँ, ठीक है। मैंने रिस्क साइड से ही समझाया कि एज एन इन्वेस्टर मेरा जो रिस्क है वो रिस्क दोनों ही के केस पे, चाहे मैं डेट लगाऊं स्टार्टअप में, चाहे मैं इक्विटी लगाऊं, मैं पहला जो मैं रिस्क ले रहा हूँ वो दीपक के आइडिया पे ले रहा हूँ। either I'm a debtor or either I'm a lender or either I'm an equity shareholder. I'm putting a bet or I'm playing on the idea of that startup. But जो रिटर्न मुझे मिलने वाला है वो डेट में रिटर्न लिमिटेड मिलने वाला है, बट इक्विटी में मुझे रिटर्न मिलने का चांस ज्यादा है, तो मैं ज्यादा रिटर्न की अपॉर्चुनिटी लूंगा ना। यस सर, बट ये सर रिटर्न ज्यादा तभी होगा ना जब ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होगा अगर जो नहीं होता भाई, है। नहीं जरूर, नॉट नेसेसरी। तुम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को छोड़ दो, उस पर आगे आएंगे तब बात करेंगे। ओ ठीक है सर, क्लियर। और अगर कोई लॉजिक को मिले तो वो तो मैंने लिख ही दिया ना यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होता है। I कॉस्ट think ऑफ he इक्विटी wanted ज्यादा to say कि होगा। investment ज्यादा होगा। नहीं, इन्वेस्टमेंट में सेम अमाउंट ले रहा हूँ। अगर मैं इक्विटी में लगाऊंगा तो भी 1 करोड़ रुपए लगाऊंगा, डेट में लगाऊंगा तो भी 1 करोड़ रुपए लगाऊंगा। पैसा उतना ही डूबना है, रिटर्न हाँ उसमें ज्यादा मिलना। करेक्ट। सिर्फ इतना फर्क है कि डेट में मेरे हाथ में एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा, वो लीगल डॉक्यूमेंट को दिखा के मैं दीपक को या उसकी कंपनी को कोर्ट में लेके जा सकता हूँ। यही एक एडवांटेज होगा डेट में। बट मेरे लिए, बिकॉज मेरा काम लीगल फाइट करना नहीं है, मेरे को कोर्ट के झंझट नहीं चाहिए, मुझे उसमें खर्चा नहीं करना लॉयर का, मेरे लिए उस लीगल डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। एज ए प्रैक्टिकल मार्केट में जो इन्वेस्टर्स खेलते हैं वो ऐसे खेलते हैं। इसीलिए आपको प्राइवेट इक्विटी की फंडिंग दिखती है। आगे कराऊंगा, अगर आप लोगों ने एग्री कि आपको वो सब एडवांस करना है तो विल माइट चूज थोड़ा सा एडवांस मॉडल उसमें स्टार्टअप के लिए, बट वो सब छोड़ो भी। बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अगर आपको पता है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं उनकी फंडिंग कैसे होती है, वो मेजरली इक्विटी साइड के थ्रू होती है। यहाँ तक किसी को डाउट है बिफोर आई कॉम्प्लिकेट दिस फर्दर? गाइस ये अपने नोट्स बना लेना, अपने नोट्स बना लेना। ये सब आपको स्लाइड्स में नहीं मिलने वाला है, और डोंट एक्सपेक्ट मी कि वहां से कुछ नोट्स आपको मिलेंगे। ये सारा मैं आपको एक्सपोजर प्रैक्टिकल साइड का दे रहा हूँ। ये बुक वो गूगल कुछ नहीं मिलने वाला आपको। अब आप गूगल करोगे या बुक्स में जाके देखोगे तो आपको सब कॉन्ट्राडिक्टरी मिलेगा। जो आपने पहले बताया, मैंने चैलेंज करके सारा कैंसिल कर दिया। और इस पूरे डिस्कशन में कोई भी चीज आपको इलॉजिकल लग रही है तो डोंट एक्सेप्ट एंड चैलेंज मी कि सर ये इलॉजिकल है, एंड डोंट गेट कन्विंस अनलेस यू आर जेन्युइनली कन्विंस। बिकॉज ये अगर इंटरव्यू में आया और आपने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, सो आई मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट टू द नेक्स्ट राउंड। कुछ डाउट है यहां तक? चलिए, अब ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ये एग्जाम्पल में दीपक का स्टार्टअप था और मैं इन्वेस्टर था। अब मैं जो हूं, मैं एक छोटा रिटेल इन्वेस्टर, अब मैं बन जाता हूं पारुल ना। जो रिटेल इन्वेस्टर है वो ऐसे नहीं सोचेगा, वो वैसे सोचेगा जैसे आप लोग सोच रहे थे अभी कि अरे यार डेट दे देता हूँ, छोटा रिस्क है, कम रिस्क है, नहीं होगा तो ये हो जाएगा। वो इक्विटी में नहीं खेलेगा इस तरीके से। हाँ या ना?
जो छोटा रिटेल इन्वेस्टर होगा वो इक्विटी में पैसा नहीं लगाएगा आसानी से जब तक वो आइडिया प्रूफ नहीं हुआ है। You with me till this point? दीपक, पारुल, फजलू, बाकी लोग इसमें कोई डिस्कनेक्ट? I think छोटा retail investor we might go because if the credit risk or risk appetite वो analyze कर लेते हैं तो why not go for equity? वो नहीं एनालाइज कर पाएगा ना पारुल। आप एक छोटे इन्वेस्टर के बारे में सोचो, उसको इतनी नॉलेज थोड़ा होती है इन चीजों की। वो तो स्टार्टअप के आइडिया को ही नहीं समझ पाएगा इतनी आसानी से। Okay. तो छोटे इन्वेस्टर के पास जाके कंपनी पूरी डिटेल प्रेजेंटेशन थोड़ा करने वाली है। ये जो बड़ा इन्वेस्टर है, बड़े इन्वेस्टर के साथ तो कंपनी की महीनों तक, कभी कभी तो सालों तक डिस्कशन चलते हैं, तब जाके वो कन्विंस होते हैं। छोटे इन्वेस्टर को एक छोटा सा प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, उससे समझ के वो मान जाएगा? कभी नहीं माने। अगर बेवकूफ रिटेल इन्वेस्टर है तो उसकी तो कोई बात नहीं है, उसको छोड़ दो आप। आई एम सेइंग एक इकोनॉमिक एक रैशनल रिटेल इन्वेस्टर है, वो नहीं मानेगा। और यही रीजन है एक स्टार्टअप आईपीओ जनरली लेकिन नहीं आते हैं। और भी रीजन है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू मोर फंडामेंटल रीजंस कि इसीलिए स्टार्टअप के पास जो एक सबसे बड़ा ऑप्शन बचता है फंडिंग का, वो बचता है प्राइवेट इक्विटी। डेट आउट हो गया, इक्विटी बचा, इक्विटी में पब्लिक इक्विटी आउट हो गया। पब्लिक इक्विटी मतलब रिटेल इन्वेस्टर से पैसा उठाना, वो आउट हो गया। सिर्फ जो एक सबसे बड़ा उसके लिए चैनल या उसके लिए विंडो बचती है, वो बचती है प्राइवेट इक्विटी की विंडो या वेंचर कैपिटल की विंडो। वीसी और पीई इज द टू मेन, उसमें एंजल इन्वेस्टर भी आप डाल सकते हो, बट यही दो कैटेगरी है या यही एक कैटेगरी है जो सबसे बड़ी विंडो क्रिएट करता है स्टार्टअप सेगमेंट के लिए। तो मैंने लॉजिकली बताया क्यों मैंने डेट रूल आउट किया और अब मैंने क्यों पब्लिक इक्विटी रूल आउट किया। पब्लिक इक्विटी मतलब रिटेल इन्वेस्टर से जो लिया जाता है। हाँ जी, अभी पॉज है। आप लोग जॉब खोल लो, कुछ पूछना है तो पूछिए। तो अपने नोट्स वोट भी पैरेलली प्लीज बनाते रहना, पूछिए कुछ पूछना है तो। ठीक है, इन केस अगर कोई क्वेश्चन नहीं है इस पे तो this cost of equity, if you can, means I can see that earlier video also for this. You can put thought for a minute on why it's exceeding the cost of debt. Thought on See, I've why already cost of covered. why cost of equity is more than cost of debt? Is that what you want me to repeat? Yes, yes. So cost of equity ज्यादा इसलिए है बिकॉज आप जब इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं आप रिटर्न ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। जब आप रिटर्न Yes. ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो कंपनी के लिए आपका रिटर्न उसकी तो कॉस्ट है ना। Okay. So that is why the cost of equity comes out to be more than the cost of debt. But when you raise the equity at that point of time, it is. I'm just absorbing that aspect that if you are raising 100 from debt and raising 100 for equity, that's the thought process of investor is that they want more on equity, that's for sure. But initial stage start karte waqt, will it make any difference for cost of debt versus cost of equity? At a later stage, what do you say? It's because the investor wants more from equity rather than debt. इसलिए तो मैंने स्टार्टअप वाले में पॉइंट 3 पे नहीं डिसीजन किया ना, पॉइंट 2 पे किया। Okay.
अभी तो रिटर्न ही नहीं आया, रिटर्न छोड़ो, रिटर्न आने की उम्मीद भी पता नहीं है कि नहीं है। स्टार्टअप केस में तो वही प्रॉब्लम है, तो मैं रिटर्न पे क्यों डिस्कशन करूंगा, तो पैसा डूबेगा नहीं डूबेगा पॉइंट 2 उस पर बात करता हूँ ना। रिटर्न का तो तब सोचूंगा जब कंपनी में कुछ प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है मुझे, अभी तो वही डाउटफुल है, वही क्वेश्चन में। So I'm more bothered about point 2 rather than point 3 at this stage. This stage means when we're talking about a startup. Okay. Any other question? हेलो हाँ, सर, बोलिए। दोनों केस में मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव और मार्केटर पर्सपेक्टिव से भी तो इक्विटी ही रेज कर रहे हैं स्टार्टअप कंपनीज में। हाँ, करेक्ट, मैंने दोनों के लॉजिक बताया ना क्यों, तभी इक्विटी में डील्स होती है ना सारी। फिर मैंने बताया कि इक्विटी में भी प्राइवेट इक्विटी क्यों होता है, पब्लिक इक्विटी क्यों नहीं होता है। दोनों केस में सर दोनों केस में इक्विटी से कैसे कर पाएगा? तभी तो बताया फसलूर आपको, उसमें कोई डाउट है तो हाँ सर। पूछो। कोई बात नहीं, ये इतना आसान नहीं है। आप, मैं ये नहीं बोल रहा एक बार में एब्जॉर्ब हो, बिकॉज एज आई सेड ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है जो आप इतने सालों से पढ़ते आ रहे हो। 2:1 2:1 वो आपने रटा हुआ है, आपको रटवाया, ठीक है। सो इट्स ओके। आज का ये वीडियो है, इसको एक बार दोबारा देखना, थोड़ा स्लो पॉज पॉज करके अपनी स्पीड पे एब्जॉर्ब करो। जो नहीं डाउट क्लियर, जो नहीं एब्जॉर्ब होता है, जो नहीं लॉजिकल लगता है, पूछना नेक्स्ट क्लास में। डोंट ट्राई एंड जंप कि हाँ, इसको ओपन पर्सपेक्टिव से सुनो, लॉजिकली एब्जॉर्ब करो जो होता है, फिर डाउट पूछो जो नहीं एब्जॉर्ब होता। सर इसमें सारा फायदा तो शेयर होल्डर का ही हो रहा है। और किसका शेयर होना होल्डर चाहिए, और किसका फायदा कराना है इस पूरे गेम में? फायदा किसका कराना है? आपको किस शेयरों का फायदा कराना है क्या? नहीं, दोनों पर्सपेक्टिव से अगर एक दोनों का मीन्स प्रोस एक का कौन होना चाहिए था ना, मैनेजमेंट क्या पर्सपेक्टिव से अगर प्रॉब्लम इक्विटी है? मैनेजमेंट में मैनेजमेंट तो शेयर होल्डर ही है। शेयर होल्डर से किया तो इन्वेस्टर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डेट का होना चाहिए था। क्या बोल रहे हो फजलूर? आपको आपको मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, दोनों थोड़ा में सोचो। अरे आप एक काम करो, आप एक बार वीडियो देखना दोबारा, फिर पूछना आप, आई थिंक आप, और अपनी खुद क्वेश्चन को भी सुनना आपने क्या बोला अभी। क्योंकि मार्केटिंग तो होना हो रही है यार, कि तुम बोल रहे हो यहाँ पे कि उसको भी एडवांटेज होना चाहिए, उसको भी एडवांटेज होना चाहिए। मैं तो अपफ्रंट बोल रहा हूँ कि हाँ, ये पूरा गेम शेयर होल्डर को एडवांटेज क्रिएट करने के लिए है, एंड दैट इज द अल्टीमेट ओनर्स, करेक्ट। हम उसी के लिए तो काम कर रहे हैं। किसके लिए पूरा बिजनेस चलता है? शेयर होल्डर्स के लिए तो चलता है। आप उल्टा ही बोल रहे हो कि शेयर होल्डर्स को सारा फायदा क्यों दे रहे हो? शेयर होल्डर्स को ही तो देना फायदा सारा। शेयर होल्डर खुश रहेगा तो कंपनी का मैनेजमेंट टिका रहेगा, वरना मैनेजमेंट को बाहर निकाल दिया जाता है। पता है ना ये वाली बात आपको? हाँ सर, मैं समझ जानता हूँ, बट लग नहीं रहा मुझे जानते हो, तभी आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे। नहीं, क्वेश्चन में कुछ और ही है कि एक का प्रॉन्स होना चाहिए, एक का कौन पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए ना। क्यों ऐसा क्यों जरूरी है? फिर थियोरेटिकल बातें, प्रॉज होना चाहिए, कॉन्स होना चाहिए कहाँ से आता है सब कुछ? आप देखो एक बार ये इस वीडियो को दोबारा मैं देखना। बता हाँ, हाँ फिर आप सर, पूछना। मैं बताऊँ। Now, so option A is what to discuss now. Okay, we'll move now. First, let me take an example of a running and stable company. एक कंपनी है जो स्टेबल है, जिसके कैश फ्लोज, डिसेंट कैश फ्लोज आ रहे हैं, रेगुलर इनकम आ रही है, डिसेंट कैश फ्लोज आ रहे हैं। आपने अपनी मार्केट में प्रोडक्ट आइडिया को प्रूव कर दिया है, आपका एक मार्केट में डिसेंट मार्केट शेयर है, आप एक अच्छे,
आप लीडर भी नहीं हो, आप बहुत छोटे भी नहीं हो, ऑन एन एवरेज अच्छे खासे प्लेयर हो मार्केट में ना। यू नीड वांट टू एक्सपैंड नाउ, अब आपको पैसे की जरूरत है और मैं मैनेजमेंट हूँ। अब मेरी प्रेफरेंस जो होगी, अब मेरी प्रेफरेंस 0.1 in 3 होगी, क्योंकि अब मुझे ऑब्लिगेशन का डर इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरी इतनी इनकम आ रही है, इतनी इनकम में से इतनी फिक्स ऑब्लिगेशन पेमेंट मेरे लिए इशू नहीं है। नाउ माई फोकस इज मोर टू क्रिएट अ बेटर ROE, जो मैं आगे बाद में सिखाऊंगा, अभी के लिए मैं सिंपल रख देता हूँ, इज टू सेव कॉस्ट फॉर माई शेयर होल्डर्स। और सेव कॉस्ट करने के दो तरीके हैं, एक टैक्स में पैसा बचाओ और दूसरा कॉस्ट को कम कर दो। इसलिए उस सेगमेंट ऑफ द कंपनी के लिए माय प्रेफरेंस इज टू फोकस मोर ऑन 1 and 3 rather than on 2. We'll pause here, कोई डाउट यहाँ तक? एंड हेंस अब मेरी प्रेफरेंस होगी ज्यादा से ज्यादा डेट रेज करने की। अब मैं 2/1 नहीं बोल रहा, मेरी प्रेफरेंस होगी अगर ये 10/1 तक भी जा सकता है तो जाने दो। माय प्रेफरेंस वुड बी टू रेज, जितना डेट मार्केट से मैं रेज कर सकता हूं उतना डेट अब रेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देन यू लिंक इट विद दी कि आपकी कितनी इनकम है। लेट्स अज्यूम आपकी EMI मंथली EMI है, तो आपकी मंथली लेट्स अज्यूम 100 रुपए की इनकम है, ठीक है। आपकी मंथली 100 रुपए की इनकम है एज ए बिजनेस, 100 करोड़ है जो भी आपको यूनिट डालना है इसके सामने, इतनी इनकम है, ठीक है, इतनी इनकम है आपकी। नाउ यू पुट एन हेयर कट टू दिस। सो व्हाट डज दिस मीन? मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि 100 रुपए की इनकम है, इसमें से जो हमारी 30 रुपीज की इनकम आ रही है इस पे हमें 100% कॉन्फिडेंस है। व्हाट डज दैट मीन 100% कॉन्फिडेंस है? इट मीन्स इतनी इनकम हमारी आती रहेगी, इवन कोई भी सिनेरियो आ जाए, मार्केट में कितनी भी वोलेटिलिटी आ जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी हम 30 रुपीज की इनकम तो ड्रॉ कर ही लेंगे। विच मीन्स 30 रुपीज की इनकम पर मंथ आप ड्रॉ कर लोगे, विच मीन्स यू आर गुड इनफ कि आप 30 रुपीज की EMI, या लेट्स अज्यूम आप और कंजर्वेटिव खेलना चाहते हो, आप कहते हो मैं 28 रुपीज की EMI तो पे कर ही दूंगा। अब ये आपके आगे आप पर मंथ कितना EMI पे कर सकते हो। आप इतना लोन क्रिएट करोगे कि इतनी EMI पर मंथ में पे कर सकूं। दिस इज द वे द न्यूमरेटर गेट डिसाइडेड फॉर अ रनिंग कंपनी कि कितना डेट रेज कर। हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछो। ये 2:1 नॉनसेंस मैंने आपको बता दिए। सम कंपनी में वी वांट टू 6/1 as well, we want little more than that as well. Basis this is what this logic works. ये मैंने मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बताया, अभी इन्वेस्टर के साइड से नहीं बताया, वो बताऊंगा। यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछिए। And this is for which type of company you're talking about? Start? No, not startup. For a company which is established, which is a running company, a company which has proven his idea, stable हो चुके हैं, जो अच्छे खासा पैसा कमा रही है, उस कंपनी की बात। A company This is the best. Which is a company which has seen its growth phase, और growth phase में है या growth phase से थोड़ा आगे जा चुके हैं। Transition to growth to maturity. हाँ, कह सकते हैं। And A is the best as per you. Sorry? A is the best as per you. What is it? Is 100% equity. You see? Sorry. क्या बोल रहे हो? And your preference is A is the best one, or in this scenario. A. No, I said in that scenario I will choose more towards debt. Okay. My preference is 1 and 3 का combination. जो 1 and 3 नीचे point लिखे हैं, मैं 1 and 3 की तरफ ज्यादा प्रायोरिटी करूंगा, 2 को लेस प्रायोरिटी में रखूंगा। Okay. और 1 and 3 का मतलब है डेट को बढ़ाओ। क्यों?
क्योंकि डेट को मैं अगर बढ़ाऊंगा तो मेरे पे एक फिक्स ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी, फिक्स ऑब्लिगेशन तो मेरे कंफर्ट में है ना, बिकॉज आई हैव गॉट माय स्टेबल कैश फ्लो। बट सर इतना ज्यादा डेप्ट होगा तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने इन्वेस्टर से साइड से, इन्वेस्टर साइड से समझा रहा हूँ ना मैं, अभी आपको मैनेजमेंट साइड से समझाया है। ओके। इन्वेस्टर मैनेजमेंट तो अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो आपको भी अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट सोचने चाहिए, स्पेशली फिर फाइनेंशियल एनालिस्ट आपको दोनों स्कूल ऑफ थॉट आने चाहिए, तभी आप डील करा सकते हो। बिकॉज मुझे दोनों पर्सपेक्टिव जब तक समझ नहीं आएंगे, मैं दोनों के रिस्क को असेस करके उनको एक कॉमन पॉइंट पे लेके नहीं आ सकता, एंड देन आई कांट फैसिलिटेट दैट डील। किसी को डाउट है यहाँ तक? चलिए लास्ट पॉइंट है मैनेजमेंट साइड, सॉरी इन्वेस्टमेंट साइड। अब जो ये कृतिका या दीपक जो, अब लेट्स अज्यूम आप लेंडर या मैं लेंडर करता हूँ, ठीक है, मैं लेंडर हूँ, आप मेरे पास ये ज्ञान लेके आते हो कि सर बहुत सारा लोन दे दो, तो आपका ऑब्जेक्टिव है अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न ज्यादा कमा के देना, इसलिए आप लोग ये कॉस्ट वॉस्ट बचा रहे हो। मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव अपने पैसे की सेफ्टी देखना है, ठीक है। तो मैं देखूंगा, सपोज अगर कृतिका आइडिया लेके मेरे पास आती है कंपनी की, हाँ एम आई बेटिंग ऑन दिस आइडिया? कृतिका अगर एक रनिंग कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, एम आई पुटिंग अ बेट, इफ आई एम गिविंग यू लोन, एम आई पुटिंग अ bet on the idea or am I putting a bet on other things like your intent, your other things? ऑन द आइडिया सर। अरे आइडिया तो प्रूव हो चुका है, अब स्टार्टअप होना है ये, आप एक कंपनी हो, आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं मार्केट में, आपकी सेल्स आ चुकी है, आपके रिजल्ट्स आ आइडिया चुके तो हैं, ऑलरेडी आ चुका है ना सर, कंपनी तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। रिटर्न सर, यानी अगर मैं लेंडर हूँ तो मैं आपके आइडिया पे बेट नहीं कर रहा ना, आइडिया तो ऑलरेडी मार्केट में प्रूव हो चुका है, तो आइडिया में तो रिस्क नहीं रहा ना। इंटेंट सर, रिटर्न कितना मिलेगा वो देखेंगे। करेक्ट, कि आप पैसे लेके भाग तो नहीं जाओगे, पैसा दोगे ना मुझे, आपकी हिस्टोरिकल क्रेडिबिलिटी क्या है, आपका क्रेडिट रेटिंग क्या है, वो सब चीजें मैं देखूंगा कि आइडिया का जो रिस्क, सॉरी आइडिया का जो रिस्क था वो तो प्रूव हो चुका है, तभी तो मार्केट ने एक्सेप्ट करके आपको सेल्स दी है और आप प्रॉफिट में बैठे हो इतने सालों से। दीपक यू आर मी ऑन दिस? यस। अब इसीलिए जब मैं अब आपको पैसा दूंगा तो मैं आइडिया वाले रिस्क पे फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी इंटेंट या क्रेडिबिलिटी वाले रिस्क पे फोकस कर रहा हूं। हेंस मैं आपको पूछूंगा कृतिका कि मेरे लोन की सेफ्टी कैसे करोगे। अब आप मुझे बोलते सर मेरे पास एक लैंड है, मैं कोलैटरल रख सकता हूँ, मोर देन हैप्पी। आप बोलते हो सर मेरे पास रिलायंस की गारंटी है, मोर देन हैप्पी। आप मुझे बोलते हो सर मेरे बोर्ड में ये बड़ा एग्जीक्यूटिव बैठता है, उसके मार्केट में क्रेडिबिलिटी गारंटी चलती है, इट्स ओके, मैं आपको लोन देने के लिए रेडी हूँ। इवन इफ इट गोज बियॉन्ड द थियोरेटिकल नंबर्स ऑफ 2:1, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? एक लैंड आप मेरे पास एक कोलैटरल करा रहे हो, या मुझे किसी और शेप एंड फॉर्म की आप गारंटी दे रहे हो, या मुझे किसी और तरीके से कंफर्ट आप दे रहे हो, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। कंफर्ट बहुत सारे तरीके होते हैं, कभी लोन स्ट्रक्चरिंग में जाएंगे तो सिखाऊंगा, ठीक है। सो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप मुझे कंफर्ट देते हो कि सर या लेंडर देख आइडिया तो प्रूव हो चुका है, उसका डर नहीं है, उसको हटा, अब तेरा डर से मेरी क्रेडिटबिलिटी मेरी इंटेंट को देख के है, उस इंटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए या तेरे रिस्क को कवर करने के लिए मैं ABC तेरे को तरीके देता हूँ, इसके थ्रू तू सेटिस्फाई हो जा और मुझे लोन दे दे। डील हैपेंस इन द लेंडिंग स्पेस, इसको लोन स्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। अगर कभी हुआ आपका इंटरेस्ट सीखने का कभी, तो आगे वो आपको भी सिखा देंगे। But this is the way the entire structuring on the debt side is being created, and then for such cases the funding happens through debt capacity. हाँ जी, ये मैंने अब मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टर दोनों साइड से आपको समझा दिया है। कुछ पूछना है तो बताइए इस रेशियो में। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, DLF जितनी भी रियल एस्टेट कंपनीज है वो बहुत हाई डेट इक्विटी रेशियो पे खेलती है। क्यों? बिकॉज उनके पास बहुत सारा लैंड बैंक होता है कोलैटरल रखने के लिए, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द बैंक्स, क्योंकि उनका आइडिया प्रूव हो चुका है रियल एस्टेट का, करेक्ट, ठीक है। तो अगर आइडिया प्रूव हो चुका है DLF का,
ठीक है, कि इस तरह की कमर्शियल प्रोजेक्ट, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बना के बेचता है, वो आइडिया प्रूव हो चुका है। ALF is into the space for so many years. They've proved their name, brand in the market, प्रोडक्ट्स उनके बिक रहे हैं, ठीक है। सो नाउ एज अ लेंडर मेरे को रिस्क है कि पैसा मेरा लेके भाग तो नहीं जाएगा, वो लैंड का कोलैटरल में मेरे पास रखवा रहा है, अगर वो पैसा डूबा भी तो मैं लैंड बेच सकता हूँ, I have a right to sell off the land, so I'm okay to give you loan, हाँ जी, without. So that's all about debt equity ratio. I've given you perspective of different scenarios, both from a management and an investor perspective, and how management chooses which is a ideal debt equity ratio for them. It varies from the phase, it varies from their strategy. आपको strategy के perspective से उसके as I think Parul said, product life cycle वो जो उसके perspective से आपको असेस करना होता है, इसलिए मैंने आपको दोनों साइड की सलाह दी। ये कंपनीज का भी क्रेडिट रेटिंग पब्लिक डिस्प्ले होता है? हाँ जी, होता है। क्रिसिल, इकरा, ये सब इनका रेटिंग डिस्प्ले करते हैं। मूडीज, क्रिसिल, ये सब जैसे हमारा होता है इंडिविजुअल का सिविल इसको, ऐसे ही कॉर्पोरेट्स का क्रेडिट रेटिंग होता है। चलिए, लास्ट टाइम एनी क्वेश्चन इन दिस रेशियो? इस रेशियो में कुछ पूछना है? थोड़ा हैवी है, थोड़ा लंबा है, आपको थोड़ा इसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, थोड़ा ये वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा, ठीक है, देन probably you'll get a hang of it. इसलिए मैं क्लोज भी नहीं करा, क्लोज मतलब I'm expecting कि नेक्स्ट क्लास में अगर आप स्पेशली दोस्त जो देख के आएंगे वीडियो को, they should have some questions and perspective, and I'm more than happy to take that as well. सर बट अगर कंपनी मतलब जैसे मैनेजमेंट इक्विटी रेज करके करती है तो उसको कुछ कोलेटरल नहीं देना पड़ता उस केस में, तो कोलेटरल उसका फ्री होल्ड होता है, तो वो ज्यादा बेटर नहीं है कंपनी के लिए? मुझे डर क्या, मैं भाग तो ना रहा हूँ, अगर मैं देखो वही बता रहा हूँ आपको, अगर मैं भाग नहीं रहूंगा, मैं आइडिया है इसकी मैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए बेस्ट रिटर्न कमाऊं, ठीक है, मुझे अपने आइडिया पे कॉन्फिडेंस है, मेरी इंटेंट क्लियर है, तो कोलैटरल रखने में प्रॉब्लम क्या है आपको बताओ? इशू क्या? डर उसको लगेगा जिसको अपने आइडिया पे कॉन्फिडेंस नहीं हो। हेलो सर। हाँ फजल सर, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इक्विटी ज्यादा रेज करना पड़ेगा, डेट कम रेज करना पड़ेगा? हाँ, तो मैं यही उस समय क्वेश्चन पूछ रहा था कि एक का प्रॉन्स होना चाहिए, एक का कॉन्स होना चाहिए, जैसे इसमें है ना मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से डेट के पर्सपेक्टिव से होगा और इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, तो मैं यही पूछ रहा था एक का नहीं, मुझे समझ में आ गया। ठीक। हाँ जी, एनीथिंग एल्स गाइस? यस सर। हाँ जी बस। सर मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए था यहाँ पे। बोलिए। इक्विटी का मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, प्लीज मुझे क्या एक बार डेप्थ का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं? यहाँ पे कुछ मुझे बहुत सारे डाउट यहाँ पे हो रहे हैं डेप्थ में, सो प्लीज हाँ, अगर हो सके तो। कोई बात नहीं, आप एक बार ये वीडियो दोबारा देखो, ठीक है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, ये ऐसी चीज नहीं है जो आपको एक बारी में समझ आ जाएगी, और हाँ, वो समझ रहा हूँ। आपको बहुत पॉज करके देखना पड़ेगा आपको। देखो एक बार ये, और मैंने तो खुद ही बोला कि मैं इसको इस टॉपिक को क्लोज नहीं कर रहा हूँ, इस रेशियो को। आई एम एक्सपेक्टिंग आप जब आप मान लो ये पार्ट 1 है इस रेशियो का, पार्ट 2 इज योर डाउट्स एंड क्वेश्चंस, आप पहले इसको देखो, ठीक है,
जब तक आप देखोगे नहीं और स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, सर ये नहीं समझ आया था, ये पार्ट नहीं समझ आया, तब तक हेल्प जब तक होगा नहीं, बिकॉज रिपीटिंग दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड हो गया है तो रिपीट वहां से करो ना। आप जब वीडियो देखोगे तो आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे, सर ये पार्ट मुझे समझ नहीं आया, क्यों, क्या पीस है, फिर वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे ना। Anything else, guys? चलिए ठीक है। So in case no, so we'll call this close and two points. Adi. Point I want to, because we are continuously telling this Ematicus team that please upload these videos in a time so that we can have, because if you upload on Monday, we have prior engagements with office and all that. So in due course of time, if they will upload, then we can brush up our discussion and we can come up with more questions. This is my thought. Second thing, have you discussed with Damini on that aspect? Yesterday we were discussing any communication. मेरी बात नहीं है, उसका कॉल आया था मुझे, बट आई वाज इन क्लास, तो मैं पिक नहीं कर पाया। बाय द टाइम आई returned the call, बहुत लेट हो गया था। my session got I think over by 10:30 PM. Then I thought it's not good to call at that time. So leave that second point with me. Okay, that's in my tracker. I will connect with her and then come back. On the first point, अगर आपने दामनी और करण को कम्युनिकेट कर दिया है तो आप कर दिए, बिकॉज मेरे पास रिकॉर्डिंग का एक्सेस नहीं है, वरना होता तो मैं सेशन के बाद तुरंत। ठीक है, सो मेरे पास उसका नहीं। ऑनेस्टली ऑन द पॉइंट 1, आपको वो फीड करण या दामनी जो भी रिकॉर्ड करता है, उनको कौन करता है, वो फीड वहां करना पड़ेगा। नहीं, we have already feeded to them. हाँ, तो नहीं, देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। आपने बोला है जनरली, बट लेट्स इस सेशन का आपको No, इस सेशन का थोड़ा the earlier session also, before the session also. करेक्ट। सो उस सेशन का स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आप कर सकते हो कि इस सेशन का मेरे को पहले करा दो, और अदर कुड बी एट अ कॉन्सेप्चुअल लेवल कि भैया हर एक उसका, बिकॉज व्हाट आई अंडरस्टैंड, again I'm not very tech savvy, especially on this side of the recording piece, because I don't do the back end piece. What I understand, it takes a day or two to get this into shape and form जो आपको मिलती है। so जैसे जब सेशन खत्म होता है, वो रिकॉर्ड होके किसी सर्वर पे जाता है, वहां से इनको 6 hours में वो डाउनलोड होता है, ऐसे करके कुछ तो प्रोसेस है which takes some 8 to 20 hours happen, and उसके बाद ये जब अपलोड करते हैं उसमें कुछ तो चेंजेस करते हैं जिससे आपको क्लैरिटी मिले। सो डोंट थिंक ये एक सिंपल हुआ कि हाँ क्लास खत्म हुआ, रिकॉर्ड हुआ और आपके हाथ में दे दिया। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है जब मैंने पास में से बात की। हैविंग सेड दिस, आई वुड नॉट ट्राई एंड गेट इनटू दैट पीस राइट नाउ, बिकॉज मुझे इतनी एक्सपर्टीज उसमें नहीं है, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड देयर इज सम वर्क इन्वॉल्व्ड, एंड हेंस इसलिए ऐसा होता है कि आई थिंक सैटरडे संडे के लेट नाइट तक वो काम खत्म होता है, शायद मंडे ट्यूसडे तक वो अपलोड होते हैं। ये मेरा गेस है दीपक, बट आप एक बार करण और दामनी को अगर आपने फीड कर दिया तो एक बार दोबारा बोलते ना, आई विल आल्सो टच बेस की इस पे क्या है, एंड देन देखो। बट ऑनेस्टली ऑन द पॉइंट 1, मेरे हाथ में रिकॉर्डिंग का वो एबिलिटी अपलोड करना है। That's not we are requesting you, because we have already raised these topics many times to them. सर मेरा बस चलेगा तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करा दूं, कभी भी नहीं। हाँ, because of this lot of students don't listen the session very carefully कि हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। Can be one of the thought. The second thought is that you want to deep dive to that aspect, because उस point of time पे जब आप सुन रहे हो, आप when we are in live classes, you cannot open something and you can हर thought आपके दिमाग में नहीं आ सकता उस समय। Agreed. So इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि रिकॉर्डिंग बंद हो, but I'm saying कि my perspective is कि जो मतलब मैंने अपना थॉट शेयर किया। I'm not saying Ematicus वैसे मेरा ये थॉट नहीं मानने वाला है इस बात में, so let's not get into that.
बट ठीक है, तो जब मैं दामनी से बात करूंगा मैं रिकॉर्डिंग वाला भी टच बेस कर दूंगा, बट एक बार आप लोग पैरेलली रिकॉर्डिंग वाला जो पॉइंट नंबर 1 है वो आप एक बार करण या दामनी को तो पॉइंट 2 मेरे पास छोड़ दो। आई विल कम बैक टू यू मोस्ट ऑफ द नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको बता दूंगा मेरी क्या बात है। एक्चुअली इनिशियली उन्होंने बोला था, इन्फॉर्म किया था कि इट टेक्स अप टू 30 hours टू अपलोड द वीडियो। ये मैं वही बता रहा हूँ, कुछ टर्न अराउंड टाइम है। इट गोज टू लॉट ऑफ लेयर्स ऑफ द टीम्स, बिकॉज जहां अपलोड होता है, जहां रिकॉर्ड होता है, फिर जहां से डाउनलोड होता है, उसमें काफी लंबा प्रोसेस। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 2-3-4 घंटे की वीडियो नहीं है, इट्स होल डे, ठीक है। मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ सेशंस, मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ बैचेस, मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ सेंटर्स करके ऐसे काफी बड़ा ये बहुत बड़ा एक रिकॉर्डिंग वीडियो फाइल बनती है। सो कुछ तो टाइम लगता है, मुझे इतना पता है, बट एग्जैक्टली मैंने कभी उतने स्पेसिफिक्स में मैंने ज्यादा ऑनेस्टली मेरे को इंटरेस्ट और टाइम नहीं है उसमें, तो उतना मैं कहूँ। बट कुछ तो टर्न अराउंड टाइम है, वो टेक्निकल है जिसकी टर्न अराउंड। पहले तो आई थिंक ये 3 या 4 दिन का होता था, दे अपग्रेडेड टू लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स एंड सर्वर्स, उसको आई थिंक रिड्यूस करके वो 2 दिन या 1 दिन में, ऐसा कुछ तो है। ठीक है, लेट्स सी, एक बार दामनी और करण से आप लोग पूछ लेना कि क्या बेस्ट है। सर हमारा जो असेसमेंट होगा लेवल 1 का, वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? आई थिंक ऑनलाइन ही होगा अभी, अगर ऑफलाइन आई डोंट थिंक इट्स द राइट चॉइस, स्पेशली जिस तरह के केसेस, नंबर ऑफ केसेस आपको हो रहे हैं। बट लेट्स सी, अभी पहले लेवल 1 तो खत्म होने दो आप लोगों का। मुझे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। तो सर हमें थोड़ा सा टाइम मिलेगा ना, मतलब लेवल 1? हाँ टाइम मिलेगा, टेंशन मत, आपको 2 दिन मिलेंगे तैयारी करने के लिए। हेलो, टाइम मिलेगा दीपक, कृतिका, आपको एटलीस्ट 1 to 2 वीक मिलेंगे, टेंशन मत लो। हाँ सुभाष। ओके सर। मुझे एक तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना, और प्लीज और भी जितनी मैथमेटिकल स्कीम है यार उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, अपना एक तो माइक ठीक करो, मुझे आधी बातें आपकी समझ नहीं आती, आप क्या बोलते हो, मैं गेस करता हूँ आप क्या बोल रहे हो। ठीक है सर, मैं दोबारा से ठीक करूंगा माइक को, कोशिश करता हूँ अपनी, क्योंकि मैंने न्यू ये हेडफोन लिया था ये 2 दिन पहले। अरे मुझे न्यू और ओल्ड में नहीं पता मुझे। अच्छा, बाकी लोग को भी सुनाई देता है सुभाष क्या बोलता है, या मेरे को इशू आता है? नहीं सर, ठीक है, नहीं सर, मुझे डर लगा कि मेरी ही प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, सो सुभाष, किसी को भी सुनाई नहीं देता, आप क्या बोलते हो? हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम? मैं प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एक सजेशन चाहिए था और एक हेल्प भी चाहिए था सारे से। ये कि जैसे इसके पहले हमारा अकाउंटिंग शुरू हुआ था, KPMG ने शुरू किया था, देन उसके बाद फिर रेशियो स्टार्ट हो गया, फिर अकाउंटिंग के बाद मैं यही चाहता हूँ कि जो ब्राउजर एज पर ब्राउजर है उसके अकॉर्डिंग ही क्लास हो, क्योंकि अकाउंटिंग के बाद आता है स्पेसिफिक फाइनेंस प्रोस्पेक्टिव आता है। अरे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सुभाष, ये नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ये सेम पॉइंट है जो दीपक ने मुझे बोला है दामनी से बात करने के लिए। सो इस पॉइंट को होल्ड करो, नेक्स्ट क्लास में दोबारा लेना, मैं इसको आंसर तब करूंगा। सुभाष, होल्ड ऑन टू दिस क्वेश्चन और रिक्वेस्ट, पिक दिस अगेन इन द नेक्स्ट क्लास प्लीज। नेक्स्ट, सेकंड क्या था आपका? हेलो, रुक जा फजलूर। हाँ सुभाष, सेकंड 2 चीजें बोली थी आपने, फर्स्ट हो गया, सेकंड ये कि सर जो हमारे कंटिन्यू जैसे अभी रेशियो चल रहा है ना, तो रेशियो कहीं से अगला स्टेप हो, कंसोलिडेशन का जो पार्ट आता है वो हो, ना कि कंसोलिडेशन को छोड़कर किसी और चैप्टर को हम पकड़ लें। उसमें सेम पॉइंट ही है, ये भी सेम पॉइंट ही है, दे कॉन्ट्राडिक्टेड टू व्हाट दीपक वांट्स। तो इसको भी नेक्स्ट क्लास में दोनों क्वेश्चन आप पाक कर लो, बोर्ड में लिख के रख लो अपने पास कागज में। सर ने नेक्स्ट क्लास के लिए बोला, नेक्स्ट क्लास में दोबारा रेज करना। ठीक, ओके। हाँ फजल बोलो। सर ये प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड आएगा लेवल 2 में। हम जो शेयर होल्डर को जो देते हैं वो कौन सा डिविडेंड रहता है? सो दोनों डिविडेंड शेयर होल्डर के पास जाता है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि एक जाता है एक नहीं जाता, डिविडेंड हमेशा शेयर होल्डर के लिए होता है, ठीक है। बट प्रपोज और इंटरिम में क्या डिफरेंस होता है वो आगे हमारे को आएगा। ओके, थैंक यू सर। Anything else guys before we close? ठीक है, चलिए, थैंक्स प्लीज
अगर आपको वीडियो मिल जाता है जब भी मंडे या से, ट्राई एंड सी एटलीस्ट डेट इक्विटी काफी क्रिटिकल है। ठीक है, चलिए, थैंक्स, बाय।